अच्छा, ये ना आप लोगों ने ऐसे करना है कि जो मेडिसिन के तो ऑलमोस्ट आई थिंक 6 पेपर हैं, ये मैं आपको करवा दूँगी। बाकी आप लोगों ने ऐसे करना है कि जो बाकी रिमेनिंग कितने पेपर बचेंगे, ऑलमोस्ट 9 पेपर्स बचेंगे, ठीक है? तो वो आप लोगों ने ना डेली एक-एक कर लें, ताकि बाकी स्पेशलिटी की अगर आप लोगों ने करने हुए तो, अगर पहले एक दफ़ा किए हुए तो ठीक है, वरना आप आधा-आधा घंटा लगा के ना एटलीस्ट, या 1 घंटा, आई थिंक 1 घंटा तो नहीं, 40-45 मिनट्स में हो जाता है। तो आप जो बाकी स्पेशलिटी वाले पेपर है ना, वो भी इसके साथ-साथ ना, मतलब 3 टू 4 डेज़ के अंदर वो भी कंप्लीट अगर कोई करना चाहता है ना, आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं उन्हें भी, ठीक है? वरना स्पेशलिटी क्लास में तो हमने मेडिसिन वाले ही करने हैं ना, और उन्हीं को बार-बार रिवाइज़ करके पक्का करना है। चलिए पेपर 1 को रिवाइज़ करते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह पेपर 2 करते हैं आज। After diabetes, cytokine involved in neutrophil migration is C5a, C5b, C3b, Fc portion, C3b, C3a, C5a. Child awake from sleep and start walking, it is termed as somnolence, somnambulism, somnoleuky, hypogonadism. In Christmas disease, increased bleeding, what will raise? APTT, BT, PT, both. The site of murmur for aortic regurgitation is neck, apex of heart, left fifth intercostal space, right side intercostal space, left right second intercostal. ठीक है. In hiatal hernia repair, which structure is at risk of damage? A zygous vein, vagus nerve, thoracic duct, sympathetic, superior epigastric vessel. वेगस नर्व, ठीक है, वेगस नर्व आएगा. वेगस नर्व मेन पास कर रही होती है ना, ठीक है. Farmer lung is due to which one of the following agent? Grain dust, sugar cane, cotton fiber dust, coal dust, asbestosis. Grain dust. Asthma which one increase? Asthma के अंदर कौन सी चीज़ increased होती है? FRC, FEV1, vital capacity, TLC, FRC. Fracture of head of femur lead to a vascular necrosis of the head artery involved in which one of the following? Lateral circumflex, descending branch, medial circumflex artery, femoral artery, tibial artery. Transient adhesion of white blood cell to endothelium is lectin, integrins, ICAM, VCAM. अच्छा, ये आपने याद रखना है. जब भी ट्रांजिएंट का मतलब है कि सिलेक्टिन, ठीक है. जब फिल्म एडिशन की बात आएगी देन आप चूज़ करेंगे इंटेग्रिन्स को, ठीक है. तो ये दोनों आपने माइंड में रखने कब चूज़ करना है. In which part of the brain part of neural activity increase before a skill movement? Precentral cortex, cerebellar cortex, medulla, midbrain, cortical association area. Cortical association area. Primary villus consist of which cells? Fetal endothelium, mesoderm and capillaries, cytotrophoblast and syncytiotrophoblasts या capillaries. ठीक है. Patient with ETT, heat loss is by conduction, convection, radiation, evaporation. A patient has complex partial seizures. How will you treat this patient? Ethosuximide, valproate, carbamazepine plus primodine. Complex partial seizures हमने पहले भी ये थे, आप कॉम्बिनेशन वाली ड्रग देंगे, ठीक है, खाली कार्बामेजेपिन नहीं देंगे. एंटीडोट ऑफ ओपियम इज एथेनॉल, एस्प्रिन, नेलेक्सोन, एसिटाइलसिस्टीन. अच्छा, ये अभी ग्रुप में भी किसी ने पूछा हुआ था कि आप लोग पूछ रहे थे कि इसका फिनोबार्बिटोल क्यों नहीं है. तो जब भी ओपियम वाला होगा ना, पॉइजनिंग वगैरह, ठीक है, तो उसमें आपने जो एंटीडोट है वो कौन सा देते हैं? नेलेक्सोन देंगे, ठीक है. A hormone that increase bicarbonate secretion from pancreas, CCK, secretin, gastrin, somatostatin, glucagon. Secretin. Hormone exhibit relation between weight and puberty is leptin, estradiol, ghrelin, progesterone. Antibodies in Hashimoto thyroiditis is anti-thyroglobulin plus antimicrosomal, anti-Smith, anti-nuclear या anti-centromere, ठीक है. Movement of brain with skull limited by fox cerebri, tentorium cerebelli, vessels या sinus. A patient of HIV presented with some purple rash on the forearm. Cause is human papilloma virus HSV, Epstein-Barr virus HSV8, HSV2. 8. Hyperexcitability of neurons due to deficiency of which one of the following in the extracellular fluid? Sodium, magnesium, calcium chloride.
कैल्शियम, वेरी गुड। स्टोन ब्लड हैज़ थ्रोम्बोसाइटोसिस, एसिडीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया। एसिडीमिया, वेरी गुड। चलिए पेपर 2 रिवाइज करते हैं, ठीक है। पेज नंबर 23, एसके मेडिसिन 19 वॉल्यूम 1 पेपर 2, ठीक है। ए फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विद पर्सन, इसका आपने बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ए फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विद पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट शुड बी परफॉर्म फॉर बीटा, ठीक है। परफॉर्म फॉर डायग्नोसिस दिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए कौन सा होता है, मिलियन वाली के जैसे मिलियनर होती है ना, उनमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है। मिलियनल क्लिनिकल मल्टी एक्सिलरी इन्वेंटरी थेरेपी, ठीक है, आपने ये चूज करना है। सेकेंड एमसीक्यू से होमोसेक्सुअल पर्सन हैविंग फाउल स्मेलिंग डायरिया, फ्लोटेंस, बाउल साउंड एग्जैजुरेटेड विद नो फाइंडिंग ऑफ एनी मैस, विच ड्रग शुड बी वो स्टार्ट। अब हम क्या करवाएंगे, उसमें मेट्रोनिडाजोल करवा लेंगे। उसमें जब भी डायरिया वाली आती है ना, तो आप फ्लैजुल ही दे रहे होते हैं ना नॉर्मली, तो मेट्रोनिडाजोल ग्रुप आ जाएगा। 53 years old woman diagnosed as a case of schizophrenia being managed with antipsychotic। मैंने आपको बताया था ना कि जो एंटीसाइकोटिक होती है ना, उसमें आपका पेशेंट साइड इफेक्ट के साथ लाजमी क्लिनिक में प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसमें कंप्लेन आ रही है ड्राई माउथ की, कॉन्स्टिपेशन की, ब्लड विजन की, यूरिनरी रिटेंशन की, फीलिंग टायर्ड। तो ये किस ड्रग का साइड इफेक्ट है, थायोरिडाजीन का। पेरीसाइट कहाँ प्रेजेंट होती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स में। 25 year old लेडी हैड मेटालिक माइट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट 2 weeks आफ्टर शी वाज सेंट होम ऑन रूटीन एग्जामिनेशन, ठीक है। अब उसे सारा कुछ हो रहा है, HB उसकी 6.5 पे आ गई है, TLC काउंट नॉर्मल है, 7500 है, प्लेटलेट डिक्रीज हो रहे हैं, 75,000 पे आ गए हैं, PT5 है, INR भी इंक्रीज हो गया, 5.5 पे आ रहा है। तो ये ड्रग इंड्यूस उसे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। ड्रग्स ले रहा था ना पहले वो माइट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट के लिए। और कल आपने जो हीम वाला है उसमें आपने देख पढ़ लिया होगा फार्मा के अंदर कि कौन कौन सी ड्रग हैं जो ब्लीडिंग कॉज करवा रही होती हैं। An elderly patient suffering from constipation on and off and as a result of straining। जब भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन आ रही होगी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो गई होगी, ठीक है, तो आप उसका स्टूल कैसे इजीली पास होगा, अगर हम प्यूबर रेक्टालिस में रिलैक्सेशन करवा दें तो, ठीक है। 7 MCQ से एक यंग पेशेंट ब्लड प्रेशर हाई है उसका 150/95, सीरम रेनिन का लेवल ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो रेनिन का लेवल ज़्यादा है वो क्या कॉज करेगा, रीनल आर्टरी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में ऐसा होता है ना। प्लेटलेट एग्रीगेशन इज डिक्रीज बाय फैक्टर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंडोथेलियम। एंडोथेलियम से क्या रिलीज होता है, प्रोस्टासाइक्लिन। 55 year old पेशेंट में जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, प्लेटलेट TLC काउंट। जब भी ओल्ड एज के अंदर मैच्योर लिम्फोसाइट्स आ जाएं तो वो कौन सा होता है, CLL होता है, ठीक है। और इसमें क्रश्ड लिटल लिम्फोसाइट्स आते हैं या स्मथ सेल्स आते हैं, और इसका मार्कर कौन सा है, CD20, CD23 एंड CD5। आपको ना इनके मार्कर अच्छे से पता होना चाहिए, ये एग्जाम के अंदर आता है। ए पेशेंट डिवेलप मिडलाइन नेक स्वेलिंग विच वाज डायग्नोज्ड एज थायराइड नोड्यूल, स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली डैमेज ड्यूरिंग द FNAC ऑफ दिस थायराइड नोड्यूल। तो अच्छा ये भी थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन है, जब FNAC आप करते हैं थायराइड नोड्यूल के लिए तो इसमें सुपीरियर थायराइड आर्टरी डैमेज होती है या इन्फीरियर थायराइड आर्टरी डैमेज होती है। इराटास के अंदर इसका क्या आंसर है, इन्फीरियर होती है ना। तो लास्ट टाइम भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ही था, कुछ लोग गए थे कि ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, कुछ लोग इन्फीरियर वाली साइड पे थे, ठीक है। तो ये अब आपने लेटेस्ट आप लोगों ने कंफर्म कर लेना कि अब वाले लेटेस्ट इराटास के अंदर इसका आंसर वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी को करते हैं या इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को चूज़ किया हुआ है। तो इसका आंसर C ही मोस्ट प्रोबेबली बनता है। पेशेंट इज हैविंग राइनोसाइनोसाइटिस, नेजल पोलिप एंड नॉन सेपरेट हाइफी कौन सी होती है, म्यूकोर होती है, और सेपरेट हाइफी कौन सी होती है, सेपरेट वाली एस्परजिलस होती है। When intracranial pressure raised, the systemic BP also raised. This help to maintain the cerebral blood flow को कौन सी चीज़ मेंटेन कर रही होती है, Cushing reflex. A female presenting with weakness on the right side। जब भी अपर लिम्ब के अंदर इस तरह के इशू आ रहे हो, पोस्टीरियर फ्रंटल पेराइटल एंड मीडियल टेम्पोरल लोब अफेक्टेड है, तो उससे कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, MCQ। पेशेंट वाज आस्क्ड टू ग्रिप द कार्ड बिटवीन द टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब। तो ये कौन सी नर्व है, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। किसकी ब्रांच है ये, अल्नर की है या मीडियन नर्व की है, वेरी गुड, मीडियन की। और पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व किसकी ब्रांच है, रेडियल की, वेरी गुड।
नेक्स्ट एमसीक्यू से हमने सॉल्व पिछले पेपर्स में किया हुआ है कि नेक्स्ट पेज पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि आप उसे 0.01 ग्राम को जब 0.01 ग्राम के ऊपर करेंगे लीटर्स में तो आंसर आ जाएगा 10 लीटर्स इनोलिन की वैल्यू। 16 ए पेशेंट प्रेजेंट विद डिक्रीज हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, इमरजेंसी के अंदर प्रेजेंट कर रहा है ऑन स्टैंडिंग। जब वो खड़ा होते हैं, हमने पहले भी बात की थी, अगर आप बैठे हुए हैं कि जब आप खड़े होंगे तो क्या होगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा और टेकिकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा। ए पेशेंट आफ्टर टेकिंग एन एनाल्जेसिक ओवरडोज हैविंग हाइपरवेंटिलेशन टेकिकार्डिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो कौन सी ऐसी ड्रग है, मतलब कौन सी ऐसी पॉइजनिंग की वजह से सिम्टम आते हैं, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक टॉक्सिसिटी में। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ड्रग कौन सी ड्रग कॉज करवाती है, हेपरिन ग्रेटर देन क्विनीन देन थायाजाइड देन डायूरेटिक्स। 19 ए पेशेंट प्रेजेंट विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एस्पिरिन टॉक्सिसिटी टू रिड्यूस द सिम्टम बाइकार्बोनेट। अगर आपने इन्फ्यूजन दी है उसे तो इसका मैकेनिज्म क्या है, वो बॉडी के अंदर एस्पिरिन के रीएब्जॉर्ब नहीं होने देगी और उसे एक्सक्रीट करवा देगी ट्यूब्यूल्स के थ्रू। HIV patient present with fever, neck rigidity and meningeal irritation, hollow seen around the organism involving the brain। तो HIV के पेशेंट के अंदर ब्रेन के अंदर कौन सा वायरस करवा रहा होता है, फंगल मेनिंजाइटिस कौन सी होती है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस। अच्छा, वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस ना उसका ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होता है थोड़ा, आई गेस कैट्स वगैरह के साथ, या थोड़ा उसका डिफरेंट है वो, मैं आपको उसकी सेंड कर दूंगी। ठीक है, HIV के अंदर जो मेनिंजाइटिस के ये जो सारे सिम्टम है ना, ये मेनिंजाइटिस के सिम्टम है। ठीक है, तो HIV वाले पेशेंट में जो फंगल मेनिंजाइटिस होते हैं या ऑर्गेनिज्म, ये जो सारा HIV इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर जो मेनिंजाइटिस होता है ना, कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस। और इसमें आप ड्रग कौन सी देते हैं, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस में एम्फोटेरेसिन B। वेरी गुड। Patient had internal jugular lymph node biopsy in neck region. After that, he developed numbness of earlobe. Which one of the following nerve got injured? तो कौन सी नर्व है जो ईयर की लोब को सप्लाई करी थी, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। चाइल्ड हैड पेप्यूल्स रैश स्टार्टिंग फ्रॉम बिहाइंड द ईयर। जब भी एक बच्चा है उसे कान के पीछे से जो रैश स्टार्ट होता है ना, वो मीजल्स का होता है, और जो पहले ट्रंक से स्टार्ट होता है देन वो पूरी फेस पे और बॉडी पे स्प्रेड करता है, वो कौन सा होता है, वो चिकन पॉक्स होंगे ना, वो चिकन पॉक्स के होते हैं जो पहले ट्रंक पे होते हैं देन वो फेस पे और बाकी बॉडी पे स्प्रेड करते हैं। अगर कान के पीछे से मुंह से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉप्लिक स्पॉट आएगा, कंजक्टिवाइटिस, इस तरह के इश्यूज आए, देन वो ट्रंक पे स्प्रेड करता है, इट्स मीजल्स। और ये ज़्यादातर ना जो पहला साल होता है ना बच्चे का, तब होते हैं जब उसमें जिन बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुई होती, जो 9th और 12-15 मंथ पे MMR का इंजेक्शन है ना, वैक्सीनेशन जिन बच्चों की नहीं होती तो उन्हें ये ज़्यादातर मीजल्स के उस एज ग्रुप के बच्चे प्रेजेंट करते हैं। There is no edema due to increase in aldosterone because escape mechanism. A female with dry eyes, dry mouth, having dysphagia, bilateral parotid swelling on X-ray pneumonitis, कौन कॉज करवाते हैं, प्राइमरी सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के अंदर। इस्कियोप्यूबिस रैमस फ्यूजिस कितने एज के ऊपर फ्यूज हो जाता है, 7 ईयर्स के ऊपर। एक पेशेंट हैज़ क्रोनिक कफ टू मार्क हिम एज ए पेशेंट ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर बेसिकली क्या हो जाता है, कफ के साथ प्रेजेंट करता है ना, 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक की हिस्ट्री आती है, और जो उसके ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड होते हैं, वो हाइपरप्लेजिया हो जाते हैं और वो सारे म्यूकस से फिल्ड हो जाते हैं। पैप स्मीयर ऑफ लेडी डन विद शो डिस्प्लेजिया इंक्रीज N/C रेशियो प्लियोमॉर्फिज्म बट बेसमेंट मेम्ब्रेन उसकी इंटैक्ट है, तो ये कार्सिनोमा इन सिटू के अंदर होता है। विच फूड कॉन्टेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन K, ग्रीन वेजिटेबल्स में। नेक्स्ट MCQ से गायनिकोमेजिया 47XY किस में होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में। ओलाइगोमेनोरिया है फीमेल के अंदर 46XO ओवर 45XO, तो ये किसके साथ अंदर फीचर आता है, गोनेडल जेनेसिस के अंदर। नहीं, टर्नर में तो ये नहीं आएगा ना, हाँ जी टर्नर ही है, ठीक है। 46XX, लेकिन इसमें जो 46XO है ना, 46XX ओवर 45XO, ठीक है, तो लेकिन इसका करेक्ट आंसर गोनेडल डिसजेनेसिस ही है। ठीक है, इसमें आप शॉर्ट स्टूचर या वाइड निपल्स उस साइड पे नहीं जाएंगे। और ओलाइगोमेनोरिया की वो कॉज पूछ रहा है ना कि एसोसिएटेड इस तरह के फैक्टर्स के साथ क्या आएगा, गोनेडल डिसजेनेसिस के साथ आएगा। ठीक है, patient sways back and forth is having ataxia drunken gait, where does neuron synapse in cerebellum and affected, तो ये cerebellar vermis के अंदर, मतलब cerebellum जो anterior cerebellum होता है ना उसमें इस तरह के symptoms आते हैं। और ये ज़्यादातर जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं ना उसमें
गेट वगैरह, अटैक्सिया और ड्रंकन गेट उसमें आता है। बिफोर वॉलेंट्री मूवमेंट द इमेज इज फॉर्म इन विच एरिया ऑफ द ब्रेन, एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्री मोटर एरिया। सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन लास्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा होता है? प्लेसेंटा होता है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी किसकी ब्रांच है? मैक्सिलरी आर्टरी की। ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इन सेल ऑफ मसल्स, तो वो कौन सा होता है? GLUT4 होता है। इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक इन एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरल्यूकिन विल कॉज इंक्रीज रेड ब्लड सेल? कल मैंने आपको क्या बताया था? रेड ब्लड सेल के अंदर 3 लेटर्स है ना, तो इसके साथ इंटरल्यूकिन 3 एसोसिएटेड होता है। मैन ड्यूरिंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट गोट इंजरी टू सर्वाइकल सिंपैथेटिक, तो इसमें क्या हो जाएगा? हॉर्नर सिंड्रोम डेवलप हो जाएगी, इप्सिलेटरल ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, देन स्वेटिंग होगी। अल्फा ऑप्शन इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑप्शन, ठीक है। 39 कहते हैं कि फीमेल हैड RTA विच रिजल्टेड इन फीमर फ्रैक्चर फॉर विच शी हैड प्रोस्थेसिस प्लेस्ड, शी डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड पिटेकिया ऑन द सेम डे। मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या होगा? जब भी फीमर के फ्रैक्चर की वजह से फैट एम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है, लेकिन अगर सेम डे पे उसकी डेथ हो जाती है देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एंटीरियर पिट्यूटरी को अगर आप रिमूव कर दें तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? एमेनोरिया के साथ, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। A patient has fever, neck pain and lower limb rash. Organism responsible for meningitis कौन सा होता है? Neisseria meningitis. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज किसकी होती है? पैक्सिनियन कॉर्पसल्स की। और लोअर किसकी होती है? मीजनर्स की। अगर एक फिटस है वो अबोर्ट हो जाए फ्रेंजिक लैब पे, तो आप उसकी फिटस की वायबिलिटी कैसे चेक करवाते हैं? फिटस में जो उसकी क्राउन रम्प लेंथ है वो कितनी होगी? 250 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी। DOTS stand for directly observed treatment short course. पेशेंट हैज़ लाइपोमा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है, तो किसको ब्लीडिंग अब कहाँ से हो रही है? सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से। सर्जन डिड थोरेसिक सर्जरी एंड मेड इंसिजन जस्ट एंटीरियर टू स्टर्नम, कौन सी आर्टरी होती है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। नेक्स्ट MCQs में लास्ट टाइम बस आपने पढ़नी है कि एडिनोकार्सिनोमा हो गया ना, तो उसका रिस्क फैक्टर क्या होता है? फैटी डाइट। लेडी विद CRF हैड ब्लड सैंपल टेकन विच वाज प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर ओवरनाइट। नेक्स्ट डे पे आपने क्या देखा है? सोडियम नॉर्मल है लेकिन हाइपर कैलेमिया हो गया है, तो और फॉस्फोरस भी रेज्ड है, LDH 600 है, तो उसकी कॉज क्या है? हिमोलिसिस हो गई है ब्लड सैंपल की, ठीक है। 42 years old पैरा 3 रिपोर्टेड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो जब भी अगर आपने थोड़ी सी आपको फाइनल ईयर की गायनी भी याद होगी तो 10 टीचर्स के अंदर भी लिखा हुआ है कि जब भी HMB के पेशेंट्स होते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के, तो आपने फर्स्ट लाइन उसमें क्या देना है? मेफिनेमिक एसिड देते हैं, ठीक है। Cohort in epidemiology is defined as study of a case or a sample. In burn patient, there is fever due to gram-positive organism and bleeding diastasis and hypotension. Diagnosis क्या होगा? DIC. Low dose aspirin inhibit thromboxane A2. A male patient came with UPT क्यों करवाएंगे? अच्छा एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं इसको। 42 year old है, पैरा 3 है, reported heavy menstrual bleeding for last 6 months. Her clinical examination is unremarkable. ठीक है। She had recent and DNC histopathology show early secretory phase endometrium. What is the first line? ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। आपने ट्रीट उसे करना है, तो ट्रीटमेंट के लिए हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अंदर अब वो आपने पैरा 3 को आप माइंड में नहीं रखना। अब वो ओल्ड एज के अंदर है, 6 महीने से उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अब कहते हैं कि ट्रीटमेंट क्या देंगे उसे, तो ट्रीटमेंट में आपने ड्रग देनी है। ऑप्शन जितने दिए हुए आपने उन्हीं में से कोई चूज़ करना है ना। ट्रीटमेंट का मेफिनेमिक एसिड देते हैं। UPT और अल्ट्रासाउंड और बाकी जो पैप्समेयर वगैरह वो सब तो इन्वेस्टिगेशन आ जाएंगे ना उसकी। अब ट्रीटमेंट में मेफिनेमिक एसिड देंगे। अच्छा बर्न पेशेंट में 51 में बर्न पेशेंट में हम DIC होता है। लो डोज एस्पिरिन किसको इनहिबिट करती है? थ्रोम्बोएक्सिन A2 को। ए मेल पेशेंट केम विद हिस्ट्री ऑफ लोअर बैक, डॉक्टर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नोटिस आउट ग्रोथ ऑफ टफ्ट ऑफ हेयर, कौन सा? स्पाइना बाइफिडा ऑक्लूटा। लिम्फेटिक फ्लो डिक्रीज कब हो जाता है? हेमरेज के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो, ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज हो, और लिम्फेटिक फ्लो में ये इंक्रीज जब होगा तो ये वाइस वर्सा हो जाएंगे। लिम्फेटिक फ्लो अगर ज़्यादा है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। 55 लेडी है डिफिकल्टी इन कमिंग डाउन स्टेयर, ये हमने किया था कि जब भी आप सीढ़ियाँ नीचे आ रहे हैं तो आपका हेड टिल्ट हो गया, आई ऊपर चली गई है, मूविंग डाउनवर्ड स्टेयर, तो लीजन किसके अंदर आता है? ट्रोक्लियर नर्व में, किसको सप्लाई करती है? सीरेटस, सॉरी कौन सा मसल होता है? सुपीरियर ओब्लिक आइज का।
हाँ जी, SO4 सुपीरियर ओब्लिक। मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ अथीरोमा क्या होता है? डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज में GFR की कैलकुलेशन दी हुई है, उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। एग्जाम के अंदर आपने जो भी कैलकुलेशन वाले उन्हें आपने 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। और जो आपकी स्क्रीन होती है लैपटॉप की, उसके ऊपर छोटा सा कैलकुलेटर बना होता है, तो जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है आपने उसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करना है, लेकिन 3 मिनट्स मैक्सिमम है। आंसर नहीं निकल रहा, स्किप कर दें या कोई भी रेलिवेंट लगा लें। अगर आप बहुत ज़्यादा आपने मैथमेटिकल के ऊपर नहीं जाना, और आपको उसके लिए क्या करना है, जो 1 घंटा लगा के आप लोग जैसे साथ साथ एक पेज बना लें, जो सारे सारे छोटे छोटे फार्मूलाज हैं ना, वो आप रिवाइज करते जाएं। और पेपर से जो एक रात पहले होती है वो आपने ये चीज़ें रिवाइज करनी है। फार्मूलाज 1, 2 या 3 MCQs लाजमी आते हैं, वरना जो कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर मीन, मोड और मीडियन है ना, छोटे छोटे मतलब मीन कैलकुलेट करना अक्सर आ जाता है, ठीक है। तो वो कैलकुलेटर को यूज़ करके वो आप ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ कैलकुलेटर है और आपने यूज़ करना है उसे। 58 कहते हैं कि एन हाइपरटेंसिव कैन बी मैनेज फार्माकोलॉजिकली, ठीक है। तो वो उसमें कौन सी है? व्हाट इज़ द एविडेंस दैट मेक इट पॉसिबल फॉर हिम टू बी ट्रीटेड फार्माकोलॉजिकली इंस्टेड ऑफ सर्जरी? हाइपररेनिनीमिया। कैलकुलेशन वाला चैप्टर वैसे आप कर लें, जो फर्स्ट एड के अंदर है ना, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग वो कर लें, और अदरवाइज़ आप फर्स्ट एड से भी कर लें वो एनफ है वो भी, ठीक है। वरना आप जैसे फर्स्ट एड के भी हम साथ साथ टॉपिक रिवाइज करते हैं ना, तो या तो आप वो हाईलाइट कर लें या अपने माइंड के अंदर रखें कि मैंने लास्ट टाइम पे सारे जो चीज़ रिवाइज करनी है, आपने फार्मूलाज को लाजमी अपने माइंड से गो थ्रू करवाना है, ठीक है। ये छोटी छोटी ना, जैसे अब एक मैं आपको बताती हूँ, एनॉइंग गैप। एनॉइंग गैप आपको आप सबको पता होगा कि हमें आता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे के वहाँ बैठे होंगे ना, तो वो प्लस माइनस के क्लोराइड प्लस आएगा, माइनस आएगा। तो ये इतनी इतनी चीज़ें ना लिख लिख के आपसे प्रैक्टिस करें कि यहाँ प्लस आना है, यहाँ माइनस आना है, ठीक है। चीज़ें सारी आप सबको आती हैं, ठीक है, लेकिन जिसकी ग्रिप अच्छी होगी वो एग्ज़ाम उस मतलब उतना ही इजीली आप एग्ज़ाम में आपको आता होगा, मतलब आप लोग वो चीज़ कर लेंगे, चाहे मुश्किल पे होगी ना, आप माइंड आप यूज़ करके आप उस चीज़ को आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है 59, इंशाल्लाह। इन AKG हार्ट रेट अगर 120 है, तो हमने इसे कल भी डिवाइड किया, तो इसका आंसर आता है 0.5 सेकेंड, ठीक है, RR इंटरवल। 60 कहते हैं कि इनिशिएटर कैसे काम करते हैं? परमानेंट DNA डैमेज के थ्रू। 61, ए मदर ब्रॉट हर फ्यू मंथ्स ओल्ड बेबी, चाइल्ड इज मेनिंजाइटिस हो गया बच्चे को, ठीक है। शी इज़ वरीड दैट हर 2 elder children might got the infection. How will you tell her what the mode of infection? तो mode of meningitis spread कैसे करता है? respiratory droplets के थ्रू। क्रिसमस डिजीज़ के अंदर, हाँ जी, क्रिसमस डिजीज़ के अंदर क्या चीज़ किस में डिफेक्ट आता है? APTT के अंदर पोस्टीरियर इंफीरियर लिमिट ऑफ लंग कहाँ तक होते हैं? T10 तक। लिम्फोसाइट की नॉर्मल परसेंटेज कितनी होती है? T लिम्फोसाइट 80 to 90% होते हैं और B लिम्फोसाइट 10 to 20%। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है तो आप T लिम्फोसाइट को प्रेफर करेंगे। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर न्यूट्रोफिल माइग्रेशन टुवर्ड द साइट ऑफ एक्यूट, मतलब क्या कैसे होती हैं? MRAT, मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहेजन एंड ट्रांसमाइग्रेशन। अथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक कॉस्ट, क्या इसमें क्या होता है? एंडोथेलियल इंजरी होती है पहले विट्रो ट्राइएड के थ्रू, देन स्टेसिस, देन हाइपरकोआगुलेबिलिटी। Atherosclerotic plaque is formed by a smooth muscle, extracellular matrix, intracellular matrix and lipids. After diabetes, cytokine involved in neutrophil migration कौन सा होता है? C5a. A patient is having mitral valve disease now present with fever, malaise and petechiae. On examination, he is also having splinter, hemorrhage and splenomegaly. What is the causative agent? कौन सा होता है? Stap viridans. लिपोफिलिक हार्मोन एक्ट थ्रू mRNA मैसेंजर RNA। ECG के अंदर एक लड़की की सॉ टूथ वेव जब BI3:1, देन एट्रियल फ्लटर होता है। विच मसल इन्वॉल्व इन फोर्स्ड एक्सपायरेशन कौन सा होता है? इंटरनल इंटरकोस्टल एंड रेक्टस एब्डोमिनस। लीस्ट डायलेटेबल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, ये आपको सारे आने चाहिए, ठीक है। लीस्ट डायलेटेबल पार्ट कौन सा होता है? मेम्ब्रेनस, ठीक है। और नैरोएस्ट मेम्ब्रेनस, हाँ जी। और नैरोएस्ट पार्ट सबसे पतला कौन सा होता है? एक्सटर्नल, जो बाहर वाला होता है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस, ठीक है। जो प्रोस्टेट होता है ना, प्रो कहते हैं कि वाइड एंड मोस्ट डिस्टेंसेबल, ठीक है। प्रो हमने ऐसे याद किया हुआ है, प्रो मोटा, कि वो मोटा हो जाता है, मतलब डिस्टेंड हो जाता है, वाइड भी हो जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल पतला एंड मेम्ब्रेनस का कि वो डायलेट नहीं होता, ठीक है।
मैं छोटा, हाँ, मेम्ब्रेनस जो शॉर्टेस्ट होता है और वो लीस्ट डायलेटेबल होता है, वो कहते हैं कि मैंने तो इससे ज़्यादा नहीं डायलेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यार तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आफ्टर मायोकार्डियल इंजरी व्हाट बायोकेमिकल चेंजेस विल बी सीन? हाइपोक्सिया के अंदर क्या होगा? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी एंड ग्लाइकोजेनेसिस। ए पेशेंट ऑफ HIV प्रेजेंट विद सम पर्पल रैश ऑन द फोrearm, कॉज क्या होगा? HSV8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है? एक्सर्ट एन ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ 25 mmHg ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा राइट सुप्रारेनल वेन इज। तो राइट सुप्रारेनल वेन किसके अंदर ड्रेन करती है? इंफीरियर वेना कैवा के अंदर। और जो लेफ्ट सुप्रारेनल वेन है और जो लेफ्ट गोनेडल वेन है वो किस में ड्रेन करती है? लेफ्ट रीनल वेन में। नेक्स्ट भी रिपीटेड है कि थिक लूप है, लेस मिजेंट्री है, फैट है, लॉन्ग वेजर फ्यू आर्टीरियल आर्केड्स किसके अंदर होती हैं? जजनम में। सैक्रल हियाटस फॉर्म्ड बाय अनफ्यूज्ड S4 एंड S5। एथलीट्स के अंदर क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। यू वेव के अंदर क्या होता है? हाइपोकेलीमिया। फार्मर है, छोटे से ब्रेथ के साथ प्रेजेंट करे। एक्सरे के अंदर क्वाइन लाइक लीजन है, किसके अंदर आती है? स्पर्जुलस के अंदर। लीजन ऑफ C5 एंड C6 विच नर्व इज अफेक्टेड? C6 होती है। ट्रैक एक्टिवली एंड फंक्शनली एसोसिएटेड विद लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के साथ कौन सा होता है? रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। रीनल कैप्सूल को कौन सी सप्लाई कर रही होती है? हमने पहले भी किया था, कैप्सूल को और ग्लोमेरुलस। इसमें C और G है ना थोड़े घूम के आते हैं, तो इसमें इंटरलोब्यूलर आर्टरी, अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने बताया हुआ है कि रीनल कॉलम के अंदर इंटरलोबार आएगी, कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के अंदर ये थोड़े बड़े हैं ना C एंड G, तो ये घूम के आएगी, थोड़ा बड़े लेटर्स वाला वर्ड आएगा इंटरलोब्यूलर। और हाइलम के अंदर क्या आएगी? सेगमेंटल आर्टरी। एक यंग गर्ल हैज हिस्ट्री ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड विजिंग इन्वेस्टिगेशन रिवील C1 की डेफिशिएंसी आ रही है। लैक एस्ट्रेज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, एंजियोडीमा हो जाएगा उसे। रिलीज अर्ली इन स्ट्रेस में क्या रिलीज होता है? CRH देन ACTH देन कोर्टिसोल। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? कोर्टिसोल देन ACTH। स्ट्रेस प्लस वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, वो कैटिकोलामिन। सर्जरी के अंदर क्या रिलीज होता है? एपिनेफ्रीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन डी लेबोरेटरी असेसमेंट के लिए क्या यूज होता है? एंजाइम 25 हाइड्रोक्सिलेज। विटामिन डी को रेगुलेट कौन करता है? PTH। ये आप लोगों ने किसी ने ग्रुप में भी भेजा हुआ था, ठीक है, तो वहाँ ना शायद कोई सेकंड ऑप्शन कैल्शियम का दिया हुआ था AA में। ठीक है, तो विटामिन डी को जो रेगुलेट करता है ना वो PTH हार्मोन होता है। ठीक है, वो कैल्शियम नहीं होता, डायरेक्टली PTH कर रहा होता है। एंडोर्फिन कंसनट्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन? हाइपोथैलेमस। इनिशिएटर, पेन का इनिशिएटर मेडिएटर कौन सा होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन। एथलीट है, ऑन एग्जामिनेशन ही कांट फ्लेक्स हिज हिप एंड एक्सटेंड नी एट द सेम टाइम। कौन सा लिगामेंट को डैमेज कहाँ पे है? एवर्जन ऑफ एंटीरियर आइलिक स्पाइन के अंदर। ठीक है, ग्लूटियल रीजन के अंदर पेन आ रही है ना उसे। टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज एसोसिएटेड विद, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कम हो जाए और इंक्रीज A/A ग्रेडियंट इंक्रीज हो गया तो राइट से लेफ्ट शिफ्ट के अंदर हमने बात की थी, ये चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन विद गेस्टेशनल डायबिटीज मेटफॉर्मिन इज ऑफन प्रिस्क्राइब्ड विच what is one of the metabolic effect of metformin in these patients? Increase fat utilization. पेशेंट ऑन ATT बिग टो की स्वेलिंग किस में आती है? गाउट किसका साइड इफेक्ट है? पायराजिनामाइड का। नेक्स्ट MCQs है इस्कीमिया, इन्फाक्शन और इन्फेक्शन, इन सब के अंदर इंजरी कैसे होती है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के प्रोडक्शन की वजह से। ए पेशेंट हैड सर्जरी आफ्टर विच ही हैड नम्बनेस ऑफ फोरआर्म अलोंग विद डिफिकल्टी इन मूवमेंट ऑफ हैंड। ही वॉज डायग्नोज सबक्लेवियन, ये कल भी आप लोग शायद कोई पूछ रहा था। ठीक है, सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम में जो डिफेक्ट आता है कौन सी आर्टरी कंप्रेस होने की वजह से आता है? वर्टेब्रल आर्टरी। आर्टरी पाल्पेटेड बिटवीन ट्रेकिया एंड इंफ्राहेड कौन सी होती है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ड्रग ऑफ चॉइस इन पायराप्रिंस मेटल एंजाइना में हम क्या देते हैं? नाइट्रोप्रोसाइड देते हैं। नेक्स्ट MCQs में कि हेड की इंजरी हो गई है, ही रिमेन्ड अनकॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। CT स्कैन के अंदर क्रिसेंट शेप हेमाटोमा किसके अंदर आता है? सबड्यूरल हेमाटोमा। EEG of a man with relaxed mind and eyes closed show which EEG waveform? Alpha waves. DOT stand for directly observed treatment short course. नेचुरल किलर सेल क्या करते हैं? किल कर देते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल को। ट्रीटमेंट ऑफ डिफ्यूज लार्ज B सेल लिम्फोमा इज सर्जरी एंड कीमोथेरेपी। फूड विच कॉज ए डिक्रीज इन रिस्क ऑफ कैंसर कौन से होते हैं? चॉकलेट बोनबोन्स। 105 क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। नाउ हिज ब्लड पिक्चर शो ब्लास्ट सेल एंड CD10 एंटीजन पॉजिटिव कौन सा होता है? डाउन सिंड्रोम। पैथोजेनेसिस ऑफ DIC इज इम्पेयर्ड फिब्रोलिटिक सिस्टम। बेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ प्रीलोड क्या होता है? एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम।
A lady presented with metal rash, anemia, thrombocytopenia and recurrent 4 abortions in the gynae OPD. तो ये कौन सा होता है? एप्ला. इसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी. कार्डिक प्लेक्सिस में दोनों होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. नेक्स्ट एमसीक्यू में जब भी सेल श्रिंक होगा किसके थ्रू होगा? अपोप्टोसिस के थ्रू. पल्मोनरी सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी ऑफ पल्मोनरी, अगर सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, तो उसमें क्या होता है? टेंशन, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी और कंप्लायंस डिक्रीज हो जाएगी. ए गर्ल हैज ए टेंडर मैस व्हिच इज क्रेनियली कनेक्टेड विद अम्बिलिकस एंड कॉर्डली कनेक्टेड विद द ब्लैडर. विच मैस इज दिस? तो वो कौन सा होता है? यूरेकल सिस्ट होता है. हाउसर मेम्ब्रेन फॉर्म द हाइपोब्लास्ट विल मेक बाउंड्री ऑफ, किसकी बाउंड्री बनाता है? एक्सोसिलोमिक कैविटी बनाता है. चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की डीएनए के अंदर सर्वाइकल कैंसर कौन कॉज करवाता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 एंड 18. Lateral boundary of deep inguinal ring is made कौन बनाता है? Fascia transversalis. Student examining a slide visualize a tumor of muscle of GIT. A protein which connect the cell together, तो सेल को कनेक्ट कौन करवाता है? फाइब्रोनेक्टिन. कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसका जो कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स के अंदर. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर अगर पोटाशियम, हमने बात की थी कि हाइपर कैल्सीमिया क्या करवाता है? डायस्टोलिक कार्डिक अरेस्ट. और हाइपर कैल्सीमिया, अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो वो सिस्टोलिक कार्डिक अरेस्ट करवाएगा. नेक्स्ट एमसीक्यूज में कि अगर एडीमा की वजह से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वो किस में होता है? इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस के अंदर. ए पर्सन wants to identify acid fast bacilli which structure is unique to acid fast bacilli and helps identify them mycolic acid. Pregnant lady with 5 weeks of gestation, amenorrhea presented to you in the OPD. She was diagnosed with German measles. Which one of the following complication is the fetus most likely have? 7 वीक से अगर नीचे आएगा तो बायलैटरल कैटरैक्ट होगा. अगर 7 वीक से ज़्यादा के बाद इन्फेक्शन हो रहा है तो वो डेफनेस कॉज करवाता है, और ओवरऑल भी वो डेफनेस ही कॉज करवा रहा होता है. न्यू बॉर्न प्रेजेंट विद बायलैटरल कैटरैक्ट तो हमने याद किया रूबेला के साथ, और इसके साथ हार्ट का कौन सा मर्मर एसोसिएटेड होता है रूबेला के साथ? ये भी एमसीक्यूज याद होना चाहिए आपको. पीडीए, वेरी गुड. ए पेशेंट हैविंग थिन फ्रोथी ग्रीन डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग पियर शेप ट्रोफोसाइट कौन से होते हैं? ट्राइकोमोनास वेजिनलिस. और ये स्ट्रॉबेरी शेप ऑर्गेनिज्म होते हैं. अच्छा. फीमेल विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स डेवलप विजाइनल इरिटेशन एंड पस. जर्की मूवमेंट किसकी होती है? ट्राइकोमोनास वेजिनलिस की. सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग कौन बनाता है? एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस. मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, रेंज के थ्रू और वेरिएंस. सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे मेजर करते हैं? मीन, मोड एंड मीडियन के थ्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कौन करवाता है? कोकेन. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग रीनल बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन से होते हैं? प्रोटियोग्लाइकैन. ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन रिपेल द प्रोटीन ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? प्रोटियोग्लाइकैन. रिपीटेड है क्वेश्चन. कॉमन टू ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन, दोनों का सेम ही लिवर के अंदर इफेक्ट होता है. दोनों ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाती हैं और स्केलेटल मसल के अंदर, ठीक है, एक्ट करती हैं. ग्लूकागॉन इंक्रीजेस एक्सरसाइज के अंदर इंक्रीज होता है. हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर आर्जिनिन, सीसीके, नोर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन एक्सरसाइज. और डिक्रीज कब होता है? हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर, जब बॉडी के अंदर फैट स्टेट में अगर आपने खाना खाया हुआ है तो, ठीक है. इंसुलिन जब ज़्यादा हो, सोमैटोस्टैटिन इसे इनहिबिट करवाता है, फैटी एसिड एंड कीटो एसिड. यूरेटेरिक बट नॉट रीचिंग द मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम, तो इसमें क्या होगा? किडनी तो बन जाएगी लेकिन उसमें यूरेटर नहीं होगा. ट्रू हर्मेफ्रोडाइट में क्या होता है? XX इज ग्रेटर देन XX और XY देन ग्रेटर देन XXY. माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ मेलिग्नेंसी, क्या फीचर आएगा आपके पास? इन्वेड करी होगी सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर भी. स्ट्रेटम फंक्शनैलिस शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड पार्चुरेशन कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लेयर्स? स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम एंड स्पॉन्जियोजम. एस्ट्रोजन इफेक्ट इन एडल्ट फीमेल के अंदर क्या करवाती है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. वल्वा की नर्व सप्लाई क्या होती है? पुटेंटल नर्व. ए मैन केम टू ओपीडी विद हिस्ट्री ऑफ हेमाथूरिया, इंक्रीज यूरिनरी इन्फेक्शन ऑन DRA, स्टोनी हार्ड मैस फेल्ट इन द प्रोस्टेट. कौन सी प्रोस्टेट की लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होती है? इंटरनल आइलिक एंड सैक्रल. बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया इज कॉज्ड बाय लीजन ऑफ ऑप्टिक याज्मा, कौन सा? मिडिल वाला. आफ्टर फ्यू वीक्स डिलीवरी के अंदर रिग्रेशन ऑफ इनलार्ज साइज, यूट्रस का साइज डिक्रीज कैसे होता है? लाइसोसोम एंजाइम्स के थ्रू. प्रोटोन को जीन्स और नॉर्मल जीन्स जो कि सेल की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट MCQ तो बस अपनी लास्ट लाइन को हाईलाइट कर लेने के. डिमिनिश एंकल जर्ड, तो एंकल रिफ्लेक्स की रूट वैल्यू कौन सी होती है? S1 नर्व रूट. हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आइलिक क्रस्ट ट्रांसवर्सली एट द लेवल ऑफ, ट्रांसवर्सली किस लेवल पे होती है? L4 के लेवल पे.
रेक्टस नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहते हैं कि सर्जरी इज डन, देयर इज डैमेज टू सुप्रा प्यूबिक एरिया लीडिंग टू कंप्रोमाइज्ड ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। एक मसल उसकी, लेकिन अब कहते हैं कि लेकिन अभी भी उस एरिया को कौन सी सप्लाई करिए, रेक्टस एब्डोमिनस की मसल को डीप इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी स्टिल उसे ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। विच ड्रग इज नॉट गिवन ऑरली बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मैकेनिज्म किसका है, एड्रेनालिन का, इसे हम आईवी रूट के थ्रू देते हैं। सीओपीडी के अंदर इसकी रेशियो कितनी होती है, 0.1 की इक्विवेलेंट होती है। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर हैज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ARDS। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर ना डेल्टा है, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं है। जो डायबिटिक मदर के बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा उनका वेट तो ज़्यादा होता है लेकिन वो हाइपोग्लाइसीमिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाइपो के साथ अगर आपने क्लिनिकली भी देखा हो ना तो वो हाइपोग्लाइसीमिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो रिस्क पे क्या होता है, ARDS। ए पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर हैज एपिगैस्ट्रिक पेन, तो उसे कौन सप्लाई कर रही थी, ग्रेटर सबक्लैंक्निक नर्व इंफीरियर टू पेल्विक आउटलेट विद स्ट्रक्चर कवर एंटीरियरली, उसे कौन कवर कर रहा होता है, यूरोजेनिकल डायफ्राम। Pelvis anesthesia is given for delivery case. Ischial spine is landmark कौन सा होता है, pudendal nerve. Patient wants analgesic for पेन फ्री लेबर कौन सी होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। प्राइमरी ग्रेविडा, वो कहते हैं कि जो प्रीनेटल थैलेसीमिया का डायग्नोसिस किसके थ्रू करवाते हैं, CVS के थ्रू, क्रॉनिक विलस सैम्पलिंग के थ्रू करवाते हैं, पता चल जाता है। विच इज़ नॉट ऑनकोजीन एंड कॉज जीन एम्पलीफिकेशन, जीन एम्पलीफिकेशन तो करता है लेकिन वो ऑनकोजीन नहीं करवाता, तो APC। ये हमने फर्स्ट एड के अंदर GIT के अंदर पिक्चर भी देखी थी। लंबर डिस्क हर्निएशन कौन करवा रहा होता है, L4 और L5 के दरमियान से L5 नर्व गुजर रही होती है। जब डिस्क हर्निएट हो जाती है तो L5 नर्व कंप्रेस हो जाती है और पेशेंट को बहुत सवेयर नर्व पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या है, टू कंट्रीब्यूट इन सिक्रेटरी फेस ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है कि ब्रेस्ट डक्ट की डेवलपमेंट करवाता है, एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करवाता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन का क्या करवाता है, मेंटेन, अच्छा एंडोमेट्रियम की थिकनेस नहीं करवाता, उससे मेंटेन कर रहा होता है, मेंटेन एंडोमेट्रियल थिकनेस। और सिक्रेटरी फेस ऑफ एंडोमेट्रियम के अंदर होता है MSD। और एल्वुला एंड लोब्यूल की डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है। ब्रेस्ट डक्ट के अंदर एस्ट्रोजन होता है और एल्वुला और लोब्यूल के अंदर प्रोजेस्टेरोन होता है। पी मलेरिया की डोरमेंट स्टेज ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होती है, हिप्नोजोआइट होती है, ठीक है। एंटर किस फॉर्म में करता है, स्पोरोजोआइट के अंदर। और लीवर के अंदर डिवाइड किस फेज में करता है, मीरोजोआइट। इन ए पेशेंट लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन अकर आफ्टर RTA, व्हाट इज अंडरलाइंग मैकेनिज्म कौन सा होता है, लैटरल इनहिबिशन। मीडियल आर्कुएट लिगामेंट फॉर्म फ्रॉम विच स्ट्रक्चर, सॉस मसल। मीडियन के अंदर डायफ्राम होता है, मीडियल के अंदर जो आपने इस तरह याद रखना है, L4 लेटरल है ना, लेटरली कौन सा मसल है, सॉस फेशिया, ठीक है। और बिल्कुल ही लेटरली कौन सा होता है, लंबर फेशिया, लंबर भी आपके पोस्टीरियरली आ जाएगा। पेशेंट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर जो मेलरी बॉडीज होती है, ऑन हिस्टोपैथोलॉजी द इंटरवोवन स्ट्रक्चर कौन सा होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। मैन अनकवर्ड लाइंग इन रूम एट 28 टेम्परेचर की बात, अनकवर्ड है और टेम्परेचर इतना बता दीजिए, जब ये दोनों चीज़ें आ जाए तो रेडिएशन के थ्रू, ठीक है, रेडिएशन और कंडक्शन दोनों आ जाएंगी। ग्रेप लाइक मैस कौन सा होता है, क्लोट्स एंड वेसिकल्स। लैब फाइंडिंग विल बी प्रेजेंट, बीटा HCG रेज्ड होता है, किसके अंदर होती है वैसे, 20 वीक गेस्टेशन है, मोलर प्रेगनेंसी। अच्छा, ये आप निमोनिक बता रहे हैं, लेट वाला किसका निमोनिक बता रहे हैं, लेट काइट्स ने दिया MP 158 का, ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे ना निमोनिक याद नहीं रहते ना, तो मैं मतलब विजुअल मेमोरी के थ्रू ही याद रख लेती हूँ। अगर आपको निमोनिक याद रखते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो आपके लिए ईजी होता है आपने वैसे मेमोराइज कर लेना, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ लोकल एनेस्थेटिक कौन सा होता है, जो सारे एनेस्थीसिया होते हैं ना वो कैसे करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं सोडियम चैनल को आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। डिफिकल्ट लेबर, जब भी लेबर के साथ आएगा और बर्स्ट सेल्स आएंगे तो वो क्या होता है, डायग्नोसिस DIC हो जाएगा। A patient present with lower abdominal pain on examination, there is a mass in the pelvic region which is extending up to the umbilicus. Umbilicus के पास तक आ रहा है, तो वो कौन सा है, कार्सिनोमा 125। ओवेरियन ग्रैनुलोसा सेल आर पार्ट ऑफ किसका पार्ट है, ओवेरियन फॉलिकल्स का।
लिगामेंट पियर्स एट लास्ट ड्यूरिंग एपिड्यूरल इन पैरामीडियल अप्रोच कौन सा होता है? लिगामेंटम फ्लेवर। हर्शस्प्रिंग डिजीज में कौन सा डर्माटोम होता है? नर्व सप्लाई सेगमेंट कौन सा होता है? S2 से S4 तक। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी प्रीनेटल स्कैनिंग की कौन सी होती है? ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज। प्रेग्नेंट पेशेंट हैज़, अच्छा अक्सर अगर आप इसके आगे वाले MCQs करेंगे ना बाकी किसी स्पेशलिटी आई थिंक रेडियोलॉजी या गायनी में, तो वहाँ इसका आंसर ना ए का अल्फ़ा भी लगाया हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ना यही है कि ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। 169 कहते हैं कि प्रेग्नेंट पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ फिट्स। फिट्स में आप क्या देंगे? आपने मैग्नीशियम दे दिया है। शी डेवलप CNS डिप्रेशन, डिप्रेस रिफ्लेक्सेस, हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। तो अब आप इसको करेक्ट करने के लिए अब आप क्या देंगे? कैल्शियम क्लोराइड देंगे, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड का भी फर्दर एंटीडोट कौन सा होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे उसे। अगर कैल्शियम ग्लूकोनेट ऑप्शन में नहीं है तो आप कैल्शियम क्लोराइड भी चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्सोन हाइलक्स पे। इंक्रीज इन डार्कनेस कौन सा होता है? रात को सोते हुए मेलेटोनिन। 172 a diabetic patient present to doctor with abscess on his foot, pus was drained and was sent to lab for culture and sensitivity. It revealed gram positive, catalase positive, coagulase positive organism, yellow color के clusters हैं, ठीक है। From antibacterial action by avoidance of opsonization by protein A. Maternal mortality in maternal death तो एक साल में कितनी होती हैं? 100/1000 लाइफ बर्थ हो जाती हैं। A patient present with jaundice on examination, scleral icterus, splenomegaly, HB फाउंड। HB उसकी 4 पॉइंट बहुत कम हो गई है। हिमोलिसिस चल रही है ना, कोई उसकी HB ड्रॉप होगी, यानी कि HB कोई टूट रहा है। बिलीरुबिन का लेवल 4 पे है, क्योंकि जाहिर है जॉन्डिस है तो उसे बिलीरुबिन तो रेज्ड होगी विद इंक्रीज रेटिक्स काउंट, तो ये सीधा सीधा हिमोलिटिक एनीमिया का डायग्नोसिस है। A research has been done on 2 different groups. The research reject the null hypothesis, reject हो गया. It means there is a huge difference between the 2 groups. Female patient with a family history of venous thromboembolism. She अब आप क्या इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? D dimers करवाएंगे। फीमेल हैविंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, प्री एक्लैम्पशिया। तो प्री एक्लैम्पशिया की कितने परसेंटेज के चांसेस है कि हो सकता है? 12.3% इन, तो इसका चांसेस ना जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है ना, जो फर्स्ट टाइम कंसीव होती है, फर्स्ट टाइम उनकी प्रेगनेंसी होती है, उसके अंदर इसका चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। हाइपरटेंशन का और प्री एक्लैम्पशिया का चांसेस 12.3% होता है। इंक्रीज एफ्रेंट ट्रैफिक इम्पल्स फ्रॉम कैरोटिड बॉडी ड्यू टू मेथेमोग्लोबिनेमिया हो जाता है उसे। पेशेंट विद क्रॉनिक रीनल फेलियर presented in OPD with discharge from ER, physician advises doctor to prescribe drug in lower dose। तो वो कौन सी ड्रग आपने देनी होती है? जेंटामाइसिन। होमोसेक्सुअल मेल HIV पॉजिटिव है, फीवर, ड्राई कफ फॉर वीक्स, एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया। कॉज क्या है? MAVM इंट्रासेलुलर। व्हाट इज पोटेंट स्टिमुलस फॉर गैस्ट्रिक सिक्रेशन कौन सी होती है? प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन आएगी तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सारे जो हॉर्मोन्स है वगैरह वो रिलीज होंगे, प्रोटीन की डाइजेशन होगी, तो स्टिमुलस क्या है? प्रोटीन। ये पेपर सबको क्लियर है? किसी MCQs में कंफ्यूजन हो? 39। अच्छा 39 तो इजी है कि फैट एम्बोलिज्म है ना। अच्छा मोस्ट प्रोबेबल कोज। अच्छा आप कह रहे हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी पिटिकिया, लेकिन अगर उसमें डेथ हो जाए ना फर्स्ट डे पे, तो अगर आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी देखें, सडन डेथ हो जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के बाद डेथ हो जाए, देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। लेकिन अभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पिटिकिया ही, क्योंकि कोई एम्बोलिज्म तो बना हुआ है ना, देन फैट एम्बोलिज्म। अगर इसके बाद डेथ का वर्ड हो जाए कि सेम डे पे डेथ हो गई है, देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। अब क्लियर हो गया ये? एक्सप्लेनेशन भी देखिए उन्होंने ऐसा ही दिया हुआ है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म कब चूज करना है? जैन सडन डेथ हो, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, ठीक है। अदरवाइज आपके जो अगर सिंपल ही आ रहा है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया वगैरह, तो फैट एम्बोलिज्म ही उसका कॉज होता है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम AA से आज चलिए बाद में देखते हैं। वो पेरिसाइट्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लीवर, GBM, स्मॉल ब्लड वेसल, हार्ट, सिलरी मसल्स। Child has papule rash starting from behind the ear, spread to whole body. Most likely diagnosis is mumps, HSV, HPV, measles, polio. Insulin independent glucose uptake occur in hypothalamus, myocardium, resting skeletal muscle, exercising skeletal muscle या liver.
Decreased lymphatic flow due to decreased arterial pressure, hemorrhage, increased hydrostatic pressure, increased permeability, and exercise. Least dilatable part of urethra is membranous, prostate, spongy. All are equally dilatable. External urethromeatus membranous. विटामिन डी को रेगुलेट कौन करता है? PTH25 हाइड्रोक्सी, PO4, कैल्शियम, कैल्सिटोनिन. Which is released early in the stress? CRH, TSH, ACTH, cortisol, epinephrine. Food which cause a decrease in the risk of cancer is chocolate, bonbons, smoked meat, apples, oranges. मैक्सिमम वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कौन कोर्स करवाता है? बुपिवाकेन, कोकेन, ट्रोकेन, रोक्यूरेनियम, प्राइलोकेन. Infant of diabetic mother has an increased risk of neonatal jaundice, macrocytic anemia, hyperglycemia, ARDS, hypercalcemia. Man uncovered lying in a room at 28 temperature, heat loss by conduction, convection, radiation, convection. Radiation. Increased afferent traffic impulse from carotid body due to methemoglobinemia, carbon monoxide poisoning, cyanide poisoning, anemic hypoxia, stagnant hypoxia. ठीक है, चलिए सेकंड थर्ड पेपर कल आप लोगों ने कर लेना है और फिर इंशाल्लाह फोर्थ में आपको करवाऊंगी. ठीक है, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो कोशिश करें कि जो इसकी बाकी पेपर्स हैं ना वो भी अगर आपसे एक एक भी होता है ना तो एक एक अगर आप डेली करेंगे तो आई थिंक 5 डेज में बाकी भी ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, डबल ए से आज सिर्फ वो वाला है ना, मसल्स, मस्कुलोस्केलेटल और डर्माटोलॉजी, यही वाले दो टॉपिक्स रह गए हैं ना हमारे, बाकी तो कंप्लीट हो गया है. चलिए ये रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपसे बाद में डिस्कस करती हूँ कि आगे क्या करना है. 5:45. पेजर डिजीज के अंदर लिटिक स्टेट के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट या बोथ? ऑस्टियोक्लास्ट. वेरी गुड. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोपेट्रोसिस या ऑस्टियोमलेशिया? ऑस्टियोमलेशिया इट्स कॉल्ड रिकेट्स. अच्छा, अब आप बताएंगे ऑस्टियोसार्कोमा का रिस्क किस के अंदर इंक्रीज हो जाएगा? पेजर डिजीज में, रिकेट्स के अंदर, ऑस्टियोपेट्रोसिस के अंदर या ऑस्टियोप्रोसिस में? पेजर डिजीज. वेरी गुड. अच्छा, अब आप बताएंगे जॉइंट सेल ट्यूमर कहाँ पे होता है? एपिफिसिस, डायाफिसिस, मेटाफिसिस? एपिफिसिस. वेरी गुड. कोडमैन ट्रायंगल किसका ट्राइएड है? जॉइंट सेल ट्यूमर, ऑस्टियोसार्कोमा. ठीक है, वेरी गुड. मेटाफिसिस के अंदर कौन सा ट्यूमर होता है? जॉइंट सेल, ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोकोंड्रोमा? मेटाफिसिस के ऊपर कौन सा होता है? एक ही होता है, ऑस्टियोकोंड्रोमा. ऑस्टियोकोंड्रोमा होता है. ठीक है, हाँ जी, ऑस्टियोसार्कोमा और ऑस्टियोकोंड्रोमा दोनों होते हैं मेटाफिसिस पे. ठीक है, अच्छा आप बताएं कि डायाफिसिस के ऊपर कौन सा होता है? डायाफिसिस के ऊपर ईविंग सार्कोमा. वेरी गुड. और कैसे आता है? 1122 के साथ आता है. पेनस किसका फीचर है? ऑटो इम्यून डिजीज है. हेला DR4 के साथ. वेरी गुड. रूमाटाइड आर्थराइटिस के साथ. और इसको ठीक है, और एसोसिएटेड है रूमाटाइड आर्थराइटिस के साथ, SLE और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के साथ. कौन सी डिजीज? सो जॉर्जन. वेरी गुड. सेप्टिक आर्थराइटिस के अंदर कौन से 3 ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं? स्टेफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड नाइजेरिया गोनोरी. हेला B27, इसके अंदर बताएं कि कौन कौन से 4 चीज़ें आती हैं? निमोनिक बता दें इसका. पेयर. सोरियाटिक आर्थराइटिस आ जाएगा, अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आ जाएगा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एंड रिएक्टिव आर्थराइटिस. रिएक्टिव आर्थराइटिस का ट्राइएड बताएं, इसमें कौन सी 3 चीज़ें आती हैं? रिएक्टिव आर्थराइटिस में कौन सी 3 चीज़ें आएंगी? कंजक्टिवाइटिस और यूरिथ्राइटिस एंड आर्थराइटिस.
एसएलई के अंदर ये हार्ट के अंदर कौन से वाल्व को पहले इन्वॉल्व करती है? एसएलई माइट्रल इज ग्रेटर देन एओर्टिक, और इसमें बटरफ्लाई रैश आता है, आर्थराइटिस एंड सीरोसाइटिस, फोटोसेंसिटिविटी, मल्टीपल सिस्टम को इफेक्ट कर रही होती है। अच्छा, आप बताएं कि एसएलई के अंदर कौन कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग्स आती हैं? 3 आपने बतानी है लैब्स के अंदर। ल्यूपिस, नहीं आपने वो बतानी है। ल्यूपिस एंटी कोआगुलेंट्स करवाते हैं, और एंटी कार्डियोलिपिन करवाते हैं, और एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 एंटीबॉडीज। ठीक है, ये तीनों आपको आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आप बताएं कि पल्सलेस डिजीज कौन सी होती है? टाकायासु। अच्छा, मुझे क्रैश निमोनिक बताएं। कावासाकी डिजीज के अंदर जो बच्चों में क्रैश निमोनिक आता है। क्रैश निमोनिक, कंजक्टिवाइटिस, रैश, एडिनोपैथी, स्ट्रॉबेरी टंग एंड हैंड एंड फुट डिजीज। पार्वोवायरस किस वस्कुलर डिजीज के साथ एसोसिएटेड है? किस वस्कुलाइटिस के साथ एसोसिएटेड है? पार्वोवायरस हेला B5 बेचेट सिंड्रोम के साथ। अच्छा, एक्यूरेट टेस्ट या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट मायसीनिस ग्रेविस में कौन सा करवाते हैं? EMG। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेंटेनेंस थेरेपी के लिए कौन सी देते हैं मायसीनिस ग्रेविस में? पायरिडोस्टिगमिन। और इनिशियली कौन सी ड्रग देते हैं? इनिशियली कौन सी ड्रग देंगे? नियोस्टिगमिन। और लैम्बोडिटन का भी आते हैं, किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली अगेंस्ट कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, चलें अब इसके बाद में रिवाइज कर लेते हैं डर्मा वाले, फिर हमारी सारे सिस्टम्स एंड हो जाएंगे इंशाल्लाह। हो गए हैं बल्कि। ठीक है, अच्छा आप बताएं कि वर्टिकल ग्रोथ किस ट्यूमर की होती है? मेलानोमा, वेरी गुड। पेलिसाइडिंग पैटर्न किसका होता है? कौन से कार्सिनोमा का होता है? वेरी गुड। अच्छा आप बताएं कि नोड्यूलर मेलानोमा कहाँ पे इफेक्ट करता है? फेस, ट्रंक या लोअर बॉडी? नोड्यूलर ट्रंक पे। और लेंटिको मेलानोमा कहाँ पे होता है? फेस पे। ठीक है। स्किन डिसऑर्डर विद आइदर IgG एंटीबॉडी अगेंस्ट डेस्मोसोम इज? किस डिजीज में ऐसे होगा? पेम्फिगस वल्गैरिस में। लाइकन प्लैनिस का इंसिडेंस कितना होता है? ये हमने एसके में भी किया हुआ है। इंसिडेंस इसका कितना होगा? 1 to 10%। और मेलिग्नेंसी के चांसेस कितने होते हैं? 10 to 15%। अच्छा आप बताएं कि बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सा निवस होता है? बच्चों के अंदर जंक्शनल होता है। और एडल्ट्स में कौन सा होता है? इंट्राडर्मल होता है। अच्छा अब आप बताएं कि बर्न वाले पेशेंट के अंदर किस टाइप के अल्सर्स आते हैं? बर्न वाले पेशेंट में कर्लिंग अल्सर्स। और ब्रेन इंजरी में क्या है? कौन से अल्सर्स आएंगे ब्रेन इंजरी में? कुशिंग अल्सर। हाइपरटेंशन में कौन से अल्सर्स आते हैं? हाइपरटेंशन में मोटरल्स। पंच्ड आउट किस में आते हैं? पंच्ड आउट। ठीक है। और अंडरमाइन अल्सर्स कौन से होते हैं? अंडरमाइन टीबी के अंदर होते हैं। ठीक है, टीबी के अंदर। अच्छा आप बताएं कि एंटीरियर शिन के ऊपर कौन से अल्सर्स बनते हैं? शिन के ऊपर, एंटीरियर शिन के ऊपर, टांग के ऊपर कौन से अल्सर्स होते हैं? आर्टीरियल होते हैं, आर्टीरियल। वीनस जो होंगे ना वो आपके एंकल से लेके मिड काफ पे होंगे।
लेकिन डिस्टल टो के ऊपर, प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर और एंटीरियर शिन के ऊपर कौन से होते हैं? आर्टीरियल अल्सर्स होते हैं, ठीक है। और बोनी प्रोमिनेंट बोन्स के ऊपर कौन से होते हैं? न्यूरोपैथिक अल्सर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, अब आप मुझे बताएं कि अब हमारे माइनर्स रह गए हैं, तो आपके पास नेक्स्ट 2 वीक्स बचते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि बाकी के लिए तो हम 2 डेज़ आई थिंक हमें CNS को देने चाहिए। आप 2 डेज़ में CNS करना चाह रहे हैं या 3 डेज़ में? इसके साथ साथ आपने फर्स्ट एड से भी रिवाइज करना है। CNS पहले CNS कर लेते हैं 2 डेज़। और इसके ना, अगर आप फर्स्ट एड से करेंगे या रफ़ी से करेंगे तब भी 50-50 पेजेस हैं दोनों के। आई थिंक रफ़ी से ही कर लें, आई थिंक CNS अच्छा दिया हुआ है रफ़ी के ऊपर, ठीक है। और साथ आप इसके डबल ए के ना कोशिश करें MCQs भी कर लें, ठीक है। वरना पल्स पॉइंट तो लाजमी करें न्यूरो एनाटॉमी वगैरह के। तो 2 डेज़ के अंदर पहले हम न्यूरो रिवाइज कर लेते हैं, 1 वीक में हम माइनर्स कर लेंगे। और साथ साथ अब आप ऐसे करें, बाकी जो हम अपनी एनाटॉमी करेंगे ना, वो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थोरैक्स, इसके आप कोशिश करें कि जब आप इसके मतलब एनाटॉमी से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा आता है ना, तो आपने ना इसकी कोशिश करनी है कि आपने इसके डबल ए के MCQs भी करने हैं, ठीक है। मैं आपसे, क्योंकि अब हमने फर्स्ट एड तो है नहीं इसकी, तो मैं आपसे ना इसके डबल ए के MCQs भी सुन लिया करूँगी, अगर आप लोग विलिंग हैं तो। मतलब एक दिन हम अपर लिम्ब को देंगे, ठीक है, एक दिन लोअर लिम्ब को देंगे। एनाटॉमी आपने अच्छी करनी है ना, ठीक है, ताकि मैं चाह रही हूँ कि आपकी 2 बुक्स हों और वहीं से हम अच्छे से कर लें। अगर आप इसके साथ रफ़ी करेंगे ना, तो रफ़ी आई थिंक आपकी आधे घंटे में या 1 घंटे के अंदर, चलो मैक्सिमम आपकी रफ़ी से हो जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन बात ये है कि वहाँ से गारंटी नहीं होती कि सिर्फ रफ़ी से ही आएगा, ठीक है। तो एक दिन हम अपर लिम्ब का रखेंगे, ठीक है, साथ में आपसे डबल ए के MCQs भी सुना करूँगी। एनाटॉमी हम यहाँ से भी करेंगे डबल ए से। एक दिन लोअर लिम्ब के लिए, एक दिन थोरैक्स के लिए, एक दिन एब्डोमेन के लिए, एक दिन पेल्विस और हेड एंड नेक और बैक, ये दोनों इकट्ठे कर लेंगे। अच्छे हैं रफ़ी के, वो तो आपने करने हैं ना, मतलब लेक्चर्स तो आपके लिए जो इजी, मतलब मैंने नहीं सुने हुए उनके लेक्चर्स, ठीक है। तो आपको मतलब जहाँ से इजी लगता है वो लेक्चर्स तो आपने कवर करने हैं, ठीक है। तो मतलब आप लोगों ने पढ़ना है, मैंने तो सिर्फ आपसे वाइवा लेना है, ठीक है। तो एनाटॉमी आई थिंक अब हमारे 6 डेज़ में हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये ठीक है इसके अकॉर्डिंग, या आप लोग इसमें कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं? आप लोग अपनी सजेशंस दे सकते हैं। 6 डेज़ में इस तरह जैसे एनाटॉमी मैंने डिवाइड की, इस लिहाज से ओके है आप सबको? हाँ जी, पहले हम CNS करेंगे, कल आपका CNS पार्ट 1 होगा, परसों को पार्ट 2 होगा, और फिर मैं आपसे 6 डेज़ में एनाटॉमी करूँगी, और माइनर तो आप लोग माइनर लास्ट वीक में माइनर्स करेंगे, ठीक है। और अपने जो स्पेशलिटी, बाकी स्पेशलिटी वो भी करते जाएँ SK20, और लास्ट डेज़ में हम 2 दिन आपके और लगेंगे, 2 दिन के अंदर आपकी SK19 वॉल्यूम 1 एंड हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह फिर हम आगे डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो कल आपने ना रफ़ी से जो फर्स्ट 25 पेजेस हैं आपने CNS के करने हैं, और डबल ए को कैसे डिवाइड करेंगे? CNS, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी आप इकट्ठे कर लें, और न्यूरो एनाटॉमी एक दिन कर लेंगे, ठीक है। मतलब विलिंग है आप सब इसके लिए, ठीक है। और पल्स पॉइंट आप लोगों ने कर लेने हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर किसी के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बचता है ना, तो CNS के आप लोगों ने ना MCQs एटलीस्ट एक दफ़ा तो डबल ए से आपने किए हुए हों, ठीक है। तो अब वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप लोग कितनी एफ़र्ट अपनी तरफ से आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं तो आपको सजेशन ही दे सकती हूँ, बाकी आपने एक्शंस तो खुद ही लेने हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको इसका टाइम टेबल बना देती हूँ, ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, तो आप लोगों ने अपनी सेल्फ स्टडी करनी है अच्छे से, ठीक है। चलें, पेपर SK का 19 का कल आपने 3 तैयार करना है, 4 हम क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से आई थिंक अगर आप चलते जाएंगे ना, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी मेरे अकॉर्डिंग तो हो जाएगी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने साथ सिंसियर कितने हैं, ठीक है। चलें ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग बता सकते हैं।